اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، عربی گرامر کے سبق نمبر 7 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس سے قبل ہم 6 سبق پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم اپنے 7ویں سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے فعل مضارع سے فعل امر بنانے کا طریقہ۔ فعل کی 4 مختلف اقسام ہوتی ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر اور فعل نہیں۔ فعل ماضی جب کسی کام کا کرنا یا ہونا گزشتہ زمانے میں پایا جائے تو اسے فعل ماضی کہتے ہیں۔ فعل مضارع جب کسی کام کا کرنا یا ہونا موجودہ زمانے میں یعنی حال میں یا مستقبل کے زمانے میں یعنی آنے والے زمانے میں پایا جا رہا ہو تو اسے فعل مضارع کہتے ہیں۔ فعل امر جب کسی کام کے کرنے کا کسی کو حکم دیا جائے، آرڈر دیا جائے تو اسے فعل امر کہتے ہیں، اور جب کسی کو کسی کام کے کرنے سے منع کیا جائے، روکا جائے تو اسے فعل نہیں کہتے ہیں۔ ابھی ہم پڑھیں گے فعل امر بنانے کا طریقہ۔ قرآن مجید کے اندر بہت سے مقامات پر فعل امر استعمال ہوا ہے، تو اگر آپ کو اندازہ ہوگا کہ فعل امر بنتا کیسے ہے تو آپ بآسانی اس فعل کا ترجمہ کر پائیں گے حکمیہ انداز میں، امر کے انداز میں۔ ایک بات یہ سب سے پہلے ذہن نشین کر لیں کہ فعل امر ہمیشہ فعل مضارع سے ہی بنتا ہے، فعل ماضی سے فعل امر بنتا ہی نہیں ہے، صرف فعل مضارع سے فعل امر بنتا ہے۔ فعل مضارع کے مخاطب کے صیغوں سے بھی فعل امر بنتا ہے، اور فعل مضارع کے غائب اور متکلم کے صیغوں سے بھی فعل امر بنتا ہے۔ سب سے پہلے ہم فعل مضارع کے مخاطب کے 6 صیغوں کو فعل امر کے اندر تبدیل کرتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے فعل مضارع کے وہ 6 صیغے دیکھیں۔ یہ بات تو آپ کے علم میں آ چکی ہے کہ 1 کو واحد کہتے ہیں، 2 کو تثنیہ کہتے ہیں، 3 یا 3 سے زائد کو جمع کہتے ہیں۔ اب آپ فعل مضارع کے صیغے دیکھیے ایک دفعہ: تفتحو، تفتحانی، تفتحونا، تفتحینا، تفتحانی، تفتحنا۔ تمام صیغوں کے شروع میں تا آ رہی ہے اور یہ علامت مضارع کہلاتی ہے۔ تثنیہ کے دونوں صیغوں کے آخر میں الف نون آ رہی ہے، اور یہ الف نون تثنیہ کے لیے آتی ہے، 2 کا معنی پیدا کرنے کے لیے آتی ہے، اور جمع مذکر کے صیغے کے آخر میں واو نون آ رہی ہے، اور اسی طرح واحد مؤنث کے صیغے کے آخر میں یا نون آ رہی ہے، اور اسی طرح اگر آپ جمع مؤنث کے آخر میں دیکھیں تو نون آ رہی ہے، نون۔ 5 صیغوں کے آخر میں نون آ رہی ہے۔ نون سب میں کامن ہے سوائے پہلے صیغے کے، واحد مذکر کے صیغے کے سوا باقی سب کے آخر میں نون آ رہی ہے۔ تو یہ بات سے نشین فرمائیں کہ جمع مؤنث کے صیغے تفتحنا کے آخر میں جو نون آ رہی ہے، یہ نون کہلاتی ہے نون ضمیری، یا یہ کہلاتی ہے نون نسوہ۔ یہ تانیث کے لیے ہے، مؤنث کا معنی پیدا کرنے کے لیے ہے، جمع مؤنث کا معنی پیدا کرنے کے لیے ہے۔ باقی جہاں جہاں بھی نون آ رہی ہے اس نون کو کہتے ہیں نون آرابی، یعنی یہ آراب کے بدلے میں آتا ہے۔ یہ نون آراب کے بدلے میں آتا ہے، آراب کو واضح کرنے کے لیے آتا ہے، آراب کو بآسانی پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ آراب کہتے ہیں زیر زبر پیش کو۔ تو باقی سارے نون گر جائیں گے ما سوائے ایک جمع مؤنث کے۔ جمع مؤنث کے آخر میں نون برقرار رہے گا۔ تو آپ یوں سمجھ لیں کہ نون آرابی جہاں جہاں بھی ہوگا وہ گر جائے گا۔ 4 جگہوں پہ نون آرابی ہے، وہ گر جائے گا۔ ایک جگہ پہ جمع مؤنث کے آخر میں جو نون ہے وہ ہے نون ضمیری، نون نسوہ، وہ نون باقی رہے گا۔ یہ ہے ہمارا سٹیپ نمبر 1۔ سٹیپ نمبر 1 کے اوپر ہم نے کیا کیا؟ نون آرابی کو ہم نے گرا دیا اور نون ضمیری کو ہم نے باقی رکھا۔ آپ سب کے آخر سے نون کو ہٹا دیں ما سوائے ایک جگہ کے، جمع مؤنث کی جگہ کے سوا باقی تمام جگہوں سے آپ سب سے پہلے سٹیپ میں نون کو گرا دیں۔ اب کیا شیپ بنے گی دیکھیے گا: تفتحو، تفتحا،
तफ्ताहू, तफ्ताही, तफ्ताहा और तफ्ताहना। ये इसकी शेप अब आपके सामने आ चुकी है। ये हमने पहले स्टेप में ये काम कर दिया। अब हमने स्टेप नंबर 2 में क्या काम करना है, वो काम ये होगा कि आप सब सीगों के आखिर में जज्म लगा दें। जज्म हम जज्म लगाते हैं और देखते हैं क्या शेप बनती है। तफ्ताह, तफ्ताहा, तफ्ताहू, तफ्ताही, तफ्ताहा, तफ्ताहना। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो जज्म एक ही जगह पे आई शुरू में। सबसे जो पहला सीगा था वाहिद मुज़क्कर का, उसके आखिर में जज्म आ गई। पेश को हमने हटा दिया और उसके आखिर में जज्म आ गई। और एक जज्म हमें नज़र आ रही है जमा मुज़क्कर के आखिर में, और एक जज्म हमें नज़र आ रही है वाहिद मुअन्नस के आखिर में, तफ्ताही। अब अगर आप गौर फरमाएं तो जो लफ्ज़ है तस्निया के जो दोनों सीगे हैं तफ्ताहा और तफ्ताहा, यहाँ चूँकि आखिर में अलिफ आ रही है इसलिए हम हा के ऊपर जज्म नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर हमने जज्म डाल दी तो वो अलिफ पढ़ा ही नहीं जाएगा। उस अलिफ को पढ़ने के लिए यहाँ हम जज्म नहीं लगा रहे। इसी तरह जमा मुअन्नस के आखिर में जो हा है वो साकिन हो गई है, जैसे तफ्ताहना। वो आखिर में जो नून है वो तो है ही नून ज़मीरी, वो तो है ही नून निस्वा, उसके ऊपर ज़बर ही आएगी, लेकिन हा जो है वो साकिन हो गया है, हा के ऊपर जज्म आ गई है। अब देखिएगा हमारा स्टेप नंबर 3 क्या होगा। स्टेप नंबर 3 के अंदर हम तमाम सीगों के शुरू से अलामत मुज़ारे जो ता थी वो हम हटा देंगे। जब हम अलामत मुज़ारे को हटाएंगे तो इसकी क्या शेप बनेगी, अब मैं इसको पढ़ तो नहीं सकता क्योंकि इस तमाम सीगों के शुरू में ऑलरेडी जज्म आ रही थी। वो जज्म मैंने लगाई नहीं है, वो जज्म आ रही थी। सिर्फ मैंने शुरू से ता को हटा दिया है। ता को हटा दिया है तो पीछे फा, ता और हा रह गया है। अब इसे हम पढ़ेंगे कैसे, इसकी अदायगी कैसे होगी। जब शुरू में आ ही जज्म रही है तो इसकी अदायगी नामुमकिन सी बात है, हम इसे पढ़ ही नहीं सकते मां सिवाय इसके कि हम इसके शुरू में हमजा वसली लगा दें। अब हम स्टेप नंबर 4 में चलते हैं और देखते हैं कि ये हमने हमजा वसली कैसे लगाना है। ये आ गया है आपके सामने स्टेप नंबर 4। यहाँ हमने सब सीगों के आखिर में हमजा वसली लगा दिया है ताकि इसको अदा करना मुमकिन हो जाए, और हमजा वसली के नीचे हमने ज़ेर डाल दी है, हमजा के नीचे ज़ेर डाल दी है। ये बन गया है इफ्ताह, इफ्ताहा, इफ्ताहू, इफ्ताही, इफ्ताहा, इफ्ताहना। तो अब तक हमने बुनियादी तौर पर 4 काम किए हैं। कौन कौन से 4 काम किए हैं? नून ज़मीरी को बाकी रखकर नून आराबी को गिराया है। स्टेप नंबर 2 में हमने तमाम सीगों के आखिर में जज्म लगाई है। स्टेप नंबर 3 के अंदर हमने तमाम सीगों के शुरू से अलामत मुज़ारे ता को हटा दिया है, और स्टेप नंबर 4 के अंदर इस लफ्ज़ की अदायगी के लिए हमने शुरू में हमज़ा वसली की मदद ली है। शुरू में हमने एक हमज़ा ऐड किया है। अब ये बात समझिएगा कि हमज़ा कहाँ आएगा, हमज़ा कहाँ नहीं आएगा। भाई सादा सी बात है, जब पहला हर्फ साकिन होगा तो चूंकि उसकी अदायगी मुमकिन नहीं होगी, अदायगी के लिए हम शुरू में हमज़ा वसली की मदद लेंगे। लेकिन अगर पहला लफ्ज़ ही मुतहर्रक हो, यानी अलामत मुज़ारे हटा देने के बाद जो पहला लफ्ज़ आएगा अगर वो मुतहर्रक हो, साकिन ना हो, उसके ऊपर ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, तो ज़बर ज़ेर पेश को हम कहते हैं हरकत, तो वो हरफ मुतहर्रक हो जाएगा। जब वो हरफ मुतहर्रक हो जाएगा तो अब हमज़ा वसली की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। बस ये रूल समझ लीजिए, हमज़ा वसली सिर्फ उस सूरत में लगाना होगा जब अलामत मुज़ारे का माबाद साकिन हो। अगर अलामत मुज़ारे को हटा देने के बाद जो पहला लफ्ज़ आ रहा है वो अगर साकिन होगा तो हमज़ा वसली की ज़रूरत पेश आएगी, जैसा कि तफ़ आलू से बनेगा इफ़ अल। अगर अलामत मुज़ारे का माबाद मुतहर्रक हो,
यानी अलामत मुज़ारे को हमने हटाया और उसका जो पहला हर्फ बन रहा था अलामत मुज़ारे को हटा देने के बाद अगर वो मुतहर्रक हो तो हमज़ा वसली लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसा कि तहाबू से बनेगा हब। हमने अलामत मुज़ारे को हटाया, ता को हटाया, तो पीछे क्या बच गया? हब। आखिर को हमने जज़्म दे दी, आखिर को हमने साकिन कर दिया आखिरी हरफ को, तो ये बन गया हब। अब चूंकि यहाँ हा जो है वो मुतहर्रक है, लिहाजा इसके शुरू में हमें हमज़ा वसली लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर दूसरी मिसाल देखिएगा, ताईदू। ताईदू से बनेगा इद, हमने वो शुरू से ता हटा दी। और इसी तरह ताज़ीनू, ताज़ीनू से बनेगा जिन। इसी के साथ एक रूल और समझ लीजिए, अगर मुज़ारे के वाहिद के सीगे के आखिर में हरफ इल्लत हो तो वो गिर जाएगा। हरफ इल्लत 3 होते हैं, अलिफ, वाओ, या। जैसे तदऊ से उदऊ, तरदा से इरदा, तरमी से इरमी। यहाँ पर आप देखें वाओ, तदऊ के अंदर वाओ हरफ इल्लत है, वो वाओ गिर गया है। वाओ गिर गया है तो आखिर में अलिफ लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं, वो भी गिर जाएगा। इसी तरह तरदा के आखिर में या हरफ इल्लत है, गिर जाएगा। और इसी तरह तरमी के आखिर में या हरफ इल्लत है तो वो गिर जाएगी और रह जाएगा इरमी। अब ये बात समझिएगा कि वो जो हमने शुरू में हमज़ा वसली लगाया था, उस हमज़ा वसली के ऊपर ज़बर आएगी, ज़ेर आएगी या पेश आएगी, उसके लिए रूल क्या है? हमने जैसे तफ़अलू से बनाया था इफ़अल, इफ़अल, तो हमने जब हमज़ा वसली ऐड किया तो उसके शुरू में हमने हमज़ा के नीचे ज़ेर डाल दी। वो ज़ेर हमने क्यों डाली? ये रूल आप समझ लें। हमज़ा वसली के ऊपर ज़बर किसी सूरत में भी नहीं आएगी। हमज़ा वसली के ऊपर या तो पेश आएगी या हमज़ा वसली के नीचे ज़ेर आएगी। पेश कहाँ पे आएगी और ज़ेर कहाँ पे आएगी समझिएगा। अगर ऐन कलमा पर ज़बर हो या ज़ेर हो तो हमज़ा वसल के नीचे ज़ेर आएगी। जैसे यफ़अलू से बनेगा इफ़अल। अब यहाँ देखें जो ऐन कलमा है, ऐन कलमा किसे कहते हैं ये बात आप पहले समझ लें। फ़ा, ऐन, लाम, हमारे पास जो बेसिक वर्ड है वो है फ़अला। फ़अला के अंदर जो फ़ा कलमा है यानी पहला हरफ वो फ़ा है, दूसरा हरफ वो ऐन है और तीसरा हरफ वो लाम है। तो ग्रामर के जो माहिरीन हैं वो फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, थर्ड लेटर कहने की बजाय या पहला, दूसरा, तीसरा हरफ कहने की बजाय वो किसी भी पहले हरफ को फ़ा कलमा बोल देते हैं, किसी भी दूसरे हरफ को ऐन कलिमा बोल देते हैं और किसी भी तीसरे हरफ को वो लाम कलिमा बोल देते हैं, इसी फ़अला को मद्देनज़र रखते हुए। तो आप देखें यफ़अलू के अंदर जो ऐन कलिमा है, ऐन कलिमा, यफ़अलू के अंदर जो ऐन है, यानी आप कह लें कि जो सेकंड लास्ट हरफ बन रहा है, सेकंड लास्ट, यफ़अलू, लाम लास्ट हरफ है और ऐन जो है वो सेकंड लास्ट है। तो ऐन कलिमा जो है उसके ऊपर चूंकि ज़बर है तो हमज़ा वसली के नीचे ज़ेर आ जाएगी और ये बन जाएगा इफ़अल। अब आप दूसरी मिसाल देखिएगा, यदरिबू, यहाँ पर जो सेकंड लास्ट हरफ है वो है रॉ, जो ऐन कलिमा बन रहा है वो है रॉ, इसका जो रूट वर्ड है वो है दराबा, द्वाद, रॉ और बा। अब आप देखें द्वाद फ़ा कलिमा है, रॉ ऐन कलिमा है, बा लाम कलिमा है। तो रा के नीचे चूंकि ज़ेर है, ऐन कलिमा के नीचे चूंकि ज़ेर है, तो इससे हम जब फ़ेल अमर बनाएंगे तो उसके शुरू में जो हमज़ा वसली आएगा उसके नीचे ज़ेर आ जाएगी और ये फ़ेल अमर बन जाएगा इदरिब। तो आपने बुनियादी तौर पर यह बात समझ ली, अज़बर कर ली होगी कि अगर ऐन कलिमा पर ज़बर हो या ज़ेर हो तो हमज़ा वसल के नीचे ज़ेर ही आएगा। ऐन कलमा पर ज़बर हो, ऐन कलमा के नीचे ज़ेर हो, ज़बर हो ज़ेर हो, दोनों सूरतों में हमज़ा वसली के नीचे ज़ेर ही आएगी। अब एक और बात इसी के साथ समझिएगा, अगर ऐन कलिमा पर पेश हो तो हमज़ा वसल के ऊपर भी पेश आएगी। जैसा कि यनसुरु, यनसुरु के अंदर जो रूट वर्ड है, इसका जो फेल माजी है वो है नासरा, नून स्वाद रॉ, नून फ़ा कलिमा है, स्वाद ऐन कलिमा है, रॉ
लाम कलिमा है, पहला हरफ, दूसरा हरफ, तीसरा हरफ। तो जो दूसरा हरफ है वो बन रहा है स्वाद, जो आइन कलिमा है वो बन रहा है स्वाद, और चूंकि स्वाद के ऊपर पेश है तो अब जब हम हमजा वसली लगाएंगे तो हमजा वसली के ऊपर पेश आ जाएगी, क्योंकि आइन कलिमा स्वाद पेश है तो हमजा वसली के ऊपर भी पेश आ जाएगी, और ये यन शुरू से बन जाएगा उन सुर। तमाम रूल आप पढ़ चुके हैं। एक दफ़ा हम प्रैक्टिस के तौर पर 6 सीगे देखते हैं जो फाइनली हमारे सामने आते हैं बनकर वाहिद, तस्निया, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस के एतबार से। इदरिब, इदरिबा, इदरिबू, इदरिबी, इदरिबा, इदरिबना। इदरिब का माना क्या बनेगा? तू एक मर्द मार। इदरिबा तुम 2 मर्द मारो। इदरिबू तुम सब मर्द मारो। इदरिबी तुम एक औरत मारो। इदरिबा तुम 2 औरतें मारो, और इदरिबना तुम सब औरतें मारो। अब आप प्रैक्टिस के तौर पर कई लफ्ज़ों को अपने पास से खुद बना सकते हैं। मसलन हम उन सुर को ले लेते हैं। यन शुरू से बनेगा तन शुरू, तन शुरू से बनेगा उन सुर, उन सुर, उनसुरा, उनसुरू, उनसुरी, उनसुरा, उनसुरना। उनसुर तुम एक मर्द मदद करो, उनसुरा तुम 2 मर्द मदद करो, उनसुरू तुम सब मर्द मदद करो, उनसुरी तुम एक औरत मदद करो, उनसुरा तुम 2 औरतें मदद करो, उनसुरना तुम सब औरतें मदद करो। अब यहाँ पर इसको समझिएगा, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ है अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक। अब अगर आप देखें इफ्ताह के शुरू में जो हमजा वसली है उसके नीचे ज़ेर है, लेकिन जब हमने मीम मुशद्दद को फ़ा के साथ मिलाना है तो हम इसको ऐसे नहीं मिलाएंगे अल्लाहुम्मा इफ्ताह, नहीं, बल्कि हम इसको मिलाएंगे अल्लाहुम्मा फ़्तह। लिखने में वो अलिफ आएगी, पढ़ने में वो अलिफ नहीं आएगी। और इसी तरह इसका एक और रूल भी आपको समझाना चाहूँगा। दूसरी दुआ देखिएगा, ये एक दुआ है अल्लाहुम्मा मंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। यहाँ अब क्या रूल अप्लाई हो रहा है? एक तो वही कि अलिफ हमज़ा वसली जो था वो ख़त्म हो गया, मिला के जब हमने इसको पढ़ा अल्लाहुम्मा मंसुर बन गया। रा के ऊपर जो सुकून है, रा साकिन थी, लेकिन अब वो सुकून को हटाकर रा के नीचे हमने ज़ेर डाल दी। तो वो ज़ेर क्यों डाल दी? क्योंकि हमने इसको मिला के पढ़ना है। हम इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते अल्लाहुम्मा मंसुर अल इस्लाम वल मुस्लिमीन, ऐसे नहीं पढ़ सकते, चूँकि इसको मिलाएंगे तो वो मिला तभी सकते हैं कि जब रा के नीचे हम ज़ेर डालें। अल्लाहुम्मा मंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन बन जाएगा। आखिर में ये जानिएगा, मुखातब के सीगों को तो आप जान चुके हैं। गायब और मुतकल्लिम ये 8 सीगे बनते हैं। इसके लिए फ़ेल अमर बनाने का क्या रूल है, क्या तरीका है? फ़ेल मुज़ारे के गायब और फ़ेल मुज़ारे के मुतकल्लिम के सीगों के शुरू में लाम अमर लगाना होगा। जब सीगे गायब के होंगे या सीगे मुतकल्लिम के होंगे तो उनके शुरू में लाम अमर लगाना होगा और आखिरी हरफ को जज़्म देना होगी। नून अराबी गिर जाएगा और नून ज़मीरी अपनी हालत पर कायम रहेगा। ये बात मैं आप हजरात को इसलिए समझा रहा हूँ कि बाज़ औक़ात हुक्म जो सामने मौजूद होता है उसे नहीं दिया जा रहा होता, बल्कि हुक्म उसे दिया जा रहा होता है जो गायब होता है। या सम टाइम कोई आदमी अपने आप को कोई हुक्म दे रहा होता है, मसलन मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे पानी पी लेना चाहिए, मुझे अब खाना खा लेना चाहिए। ये अब अपने आप को वो एक हुक्म दे रहा है। इसी तरह उसे कहो कि उसे चाहिए कि वो बैठ के पढ़े। अब ये हुक्म दिया जा रहा है, लेकिन एक गायब शख्स को हुक्म दिया जा रहा है, तो गायब को भी हुक्म दिया जा सकता है, खुद अपने आप को भी हुक्म दिया जा सकता है। खुद अपने आप के लिए जो लफ्ज़ है वो है मुतकल्लिम। तो आसान सिंपल सा रूल मैंने आपको बता दिया है। बतौर मिसाल इसकी एक गर्दान मैं आपके सामने रखता हूँ, देखिएगा। फ़ेल अमर के जो 6 गायब के सीगे हैं, वाहिद, तस्निया, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस के एतबार से 6 गायब सीगे, सब के शुरू में लाम अमर लगाना है। यहाँ जो अलामत मुज़ारे है वो कायम रहेगी, वो नहीं हटेगी, और बाकी तमाम रूल ऐसे ही हैं। यानी नून अराबी गिर जाएगा, नून ज़मीरी कायम रहेगा, सब के आखिर में जज़्म आ जाएगी। देखिएगा, लियफ्ताह, लियफ्ताहा, लियफ्ताहू, लितफ्ताह,
लियफ्तहा लियफ्तहना। फ़ेल अमर के जो मुतकल्लिम के सीगे हैं वाहिद, तस्निया, जमा और मुज़क्कर मुअन्नस के एतबार से बुनियादी तौर पर चूँकि इसके अंदर दो ही सीगे होते हैं, एक वाहिद मुतकल्लिम और एक जमा मुतकल्लिम, और वाहिद मुज़क्कर का जो सीगा है सेम उसी तरह वाहिद मुअन्नस का सीगा है, और इसी तरह तस्निया मुज़क्कर का भी है और जमा मुअन्नस का भी है। देखिएगा ये मिसाल आपके सामने है, ली अफ्ताह ली नफ्ताह। उम्मीद है आप इस क्लास के अंदर फ़ेल अमर को बनाने का तरीका बआसानी समझ चुके होंगे। इसकी प्रैक्टिस, इसकी रिहर्सल करना पड़ती है, एक्सरसाइज मश्क करना पड़ती है। मुख्तलिफ लफ्ज़ों को देखकर आप ख़ुद फ़ेल मुज़ारे के सीगों को उठाएं, मुखातब के सीगों को उठाएं, उन्हें फ़ेल अमर बनाएं, फिर गायब के सीगों और मुतकल्लिम के सीगों को उठाएं और उन्हें फ़ेल अमर के अंदर तब्दील करें। जब ये आप प्रैक्टिस करेंगे 2, 3, 4 मुख्तलिफ लफ्ज़ों के ऊपर, तो फ़ेल अमर बनाने का तरीका आपको बआसानी समझ आ जाएगा। आप सब हज़रात का बहुत शुक्रिया। अगली क्लास में हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे फ़ेल नहीं बनाने का तरीका लेकर। आप सब हज़रात का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु